پیارے بچوں، میں عبدالقیوم آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ویڈیو کے ذریعہ ہم درجہ 10 کے سبق نمبر 2 بے تکلفی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سبق۔ آپ کی درسی کتاب میں جو یہ سبق ہے یہ انشائیہ ہے۔ تو پہلے ہم انشائیہ کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں کہ انشائیہ کسے کہتے ہیں، انشائیہ کی کیا تعریف ہے۔ انشائیہ کے لغوی معنی عبارت کے ہیں۔ انشائیہ نثری ادب کی ایک صنف ہے جو مضمون سے الگ انداز رکھتی ہے۔ انشائیہ میں انشائیہ نگار آزادانہ طور پر اپنی تحریر پیش کرتا ہے جس میں اس کی شخصیت کا پہلو نظر آتا ہے، کسی خاص نتیجہ کے بغیر بات کو ختم کرتا ہے، یعنی نتیجہ کو قاری پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو انشائیہ کو پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر ہی اس کا نتیجہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ انشائیہ کی مختصر تعریف ہے۔ سبق بے تکلفی کے انشائیہ نگار کنہیا لال کپور، ان کی پیدائش 1910 میں ہوئی اور ان کا انتقال 1980 میں ہوا۔ کنہیا لال کپور لاہور میں پیدا ہوئے، وہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ ہندوستان کی تقسیم یعنی بٹوارے کے بعد ہندوستان آ گئے اور گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں پرنسپل کے عہدے پر ملازم ہو گئے، یہیں ان کا انتقال ہوا۔ طنز و مزاح ان کا خاص میدان ہے۔ ابھی ہم جو سبق بے تکلفی پڑھنے جا رہے ہیں وہ طنز و مزاح پر ہی مشتمل ایک انشائیہ ہے۔ پیروڈی لکھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ زندگی کے عام تجربوں سے مزاح پیدا کر لینا ان کی ایک خاص پہچان ہے۔ نوک نشتر، بال و پر، نرم گرم، گرد کارواں، نازک خیالیاں، نئے شگوفے، سنگ و خشت، شیشہ و تیشہ اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ طنز و مزاح اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً یکساں معنوں میں بطور ایک مرکب کے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ طنز سے مراد طعنہ، ٹھٹھا، تمسخر یا رمز، یعنی آنکھوں، بھوہوں یا ہونٹوں کا اشارہ کے ساتھ بات کرنا ہے، جبکہ مزاح سے خوش طبعی، مذاق یا ظرافت مراد لیا جاتا ہے۔ پیروڈی کی تعریف پہلے سے موجود کسی نظم یا نثر میں تھوڑی بہت تبدیلی کر کے مذاق کا رنگ پیدا کرنا پیروڈی کہلاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم ایک عبدالحمید عدم کا ایک شعر دیکھتے ہیں۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے: شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ کسی ستم ظریف نے ایک لفظ میں تحریف کر کے اس کو بدل کر اس شعر کو کچھ اس طرح سے کر دیا: شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں۔ ایک لفظ کی تبدیلی سے شعر بامعنی بھی رہا اور ہنسی بھی آتی ہے۔ مندرجہ بالا شعر تحریف لفظی کی بہت عمدہ مثال ہے۔ بے تکلفی کہنے کو تو استاد جوک فرما گئے، اے جوک تکلف میں ہے تکلیف سراسر، لیکن یہ غور نہ فرمایا کہ اگر تکلف میں تکلیف ہے تو بے تکلفی میں کون سی راحت ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ وہ تکلف بھی جس کی معراج پہلے آپ ہے، بے تکلفی سے بدرجہ بہتر ہے۔ فرض کیجئے آپ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جہنم کا داروغہ آپ سے کہتا ہے تشریف لے چلیے، اور آپ مسکرا کر نہایت لجاجت سے عرض کرتے ہیں
جی پہلے آپ، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے حسن اخلاق سے مرعوب ہو کر آپ کو جہنم کی بجائے جنت میں بھجوا دے۔ اس کے برعکس اگر آپ کی داروغہ جنت سے بے تکلفی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہنسی مذاق میں وہ آپ کو باغ بہشت کی کسی نہر میں اتنے غوطے لگوائے کہ آپ کو چٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ تکلف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہینگ لگتی ہے نہ فٹکری، اور جاہرداری جوں کی تیوں قائم رہتی ہے۔ مثلا آپ کے گھر کوئی صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کہتے ہیں کچھ منگواؤں آپ کے لیے، وہ فرماتے ہیں جی صاحب تکلف مت کیجیے، چائے پیئیں گے؟ شکریہ ابھی پی ہے، سوڈا منگواؤں؟ نہیں صاحب آپ تو خواہ تکلیف کرتے ہیں، شربت پیجیے گا؟ واہ صاحب آپ تو پھر تکلف پر اتر آئے، ٹھنڈا پانی پیجیے؟ اچھا صاحب اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو پی لیں گے۔ اب اگر انہی حضرت سے آپ کی بے تکلفی ہو تو آپ کو کتنی زحمت اٹھانی پڑے۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ ہاں ہاں ضرور کھائیں گے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے چائے پیئیں گے، چائے منگواؤں؟ ضرور منگوائیے، لیکن پہلے سگریٹ پلائیے۔ چائے کے ساتھ کیا کھائیے گا؟ اما یار تمہیں معلوم تو ہے، پاؤ بھر گاجر کا حلوہ، 2 آملیٹ، 4 ٹوسٹ، 6 سموسے، 10-12 کریم رول، اور ہاں ایک آدھ کیک ہو جائے تو سبحان اللہ، لیکن جلدی کیجیے۔ بے تکلفی میں یوں تو ہزاروں قباحتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ بسا اوقات اس کے طفیل آپ کو سخت خفت اٹھانی پڑتی ہے۔ آپ چند موجود اشخاص سے نہایت عالمانہ انداز میں کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ کوئی صاحب دروازے پر اس طرح دستک دیتے ہیں گویا دروازہ توڑ کر ہی دم لیں گے۔ 2-1 منٹ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بلند آواز میں چلانا شروع کر دیتے ہیں، ابے کہاں ہے؟ دروازہ کھول! ابے ناہنجار سنتا نہیں؟ ہم کب سے چلا رہے ہیں، ارے کوئی ہے؟ سب مر گئے کیا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آپ کے احباب پر نگاہ غلط انداز ڈالتے ہیں اور نہایت متانت سے کہتے ہیں معاف کیجیے گا صاحب، میری ان سے ذرا بے تکلفی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دو بے تکلف دوستوں کے درمیان کچھ اس طرح گر جاتے ہیں کہ نہ پائے رفتن نہ جائے مانند، ان میں سے ایک دوسرے کو نہایت غلیظ گالی دیتا ہے اور آپ کی طرف عفو طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے برا نہ مانیے گا۔ دوسرا جواب میں اسی طرح کی گالی دیتے ہوئے کہتا ہے معاف کیجیے گا، ہم بہت دنوں کے بعد ملے ہیں۔ اس معذرت کے بعد گالیوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو بے ساختہ اس بے تکلفی کی داد دینا پڑتی ہے۔ ناولوں میں بے تکلف دوستوں کی بڑی دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔ تھیکرے ایک کردار کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ صاحب جس دوست کے پاس ٹھہرتے تھے رخصت ہوتے وقت اس سے ایک قمیض ضرور مستعار لیا کرتے تھے۔ ہمارے ایک دوست اس معاملے میں تھیکرے کے اس کردار سے بازی لے گئے ہیں، وہ صرف قمیض پر اکتفا نہیں کرتے، ساری پوشاک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عموماً ٹیکسی میں سوار ہو کر ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں اور کمرے میں داخل ہوتے ہی فرماتے ہیں 5 روپے کا ایک نوٹ نکالیے، ڈرائیور کو دفع کر لوں، پھر باتیں کریں گے۔ یہ حضرت ہمیشہ ہماری عدم موجودگی میں واپسی کا کرم کرتے ہیں
और विदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गरम कोट, खाकी टाई और काली पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। हमारे एक और बेतकल्लुफ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगीलगीर होकर बेतकल्लुफी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली में मुलाकात हुई। बाजार के बीच उन्होंने यह अमल जो दोहराना शुरू किया तो राहगीर दांतों में उंगलियां दाब कर रह गए। हर 2 मिनट के बाद बगलगीर होकर कहते, भाई खूब मिले, यार हद हो गई। वो इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से सिर्फ 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहां भी उन्होंने इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहिरा किया था। बेतकल्लुफ दोस्त की तो वही मिसाल है कि इसे वबाले जान समझते हुए भी आप वबाले जान नहीं कह सकते। अगर इसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आदम के और ना सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि कहे कि सोएंगे भी यहीं पर, सोएंगे भी आपके साथ। दोपहर के वक्त आप सो रहे हों तो कैंची लेकर अजराह मजाक आपकी दोनों मूछों का सफाया कर डाले। शिद्दत दर्द से आप कराह रहे हों तो बदतमीजी से आपका मुंह चिढ़ाना शुरू कर दे। बाज अवकात बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकत के मुर्तकिब होते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ, हाय तकल्लुफ। एक दफा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी के आने में देर थी, प्लेटफार्म पर टहल रहा था, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हो गई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली कहने लगे। दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर चलें। मैंने माजरत चाही, इधर उधर की बातें होती रहीं। यकलख्त उन्होंने कहा, जरा टिकट दिखाइए तो। मैंने टिकट दिखाया। टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुली से कहने लगे, साहब का सामान वापस ले चलो। इन्होंने दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की। एक दिन में दरिया के किनारे खड़ा हुआ गरूब आफताब का मंजर देख रहा था। ना जाने आप कहाँ से आ टपके। आपने आओ देखा न ताओ, पीछे से मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढिठाई से कह कहा लगाकर फरमाने लगे, वाह खूब छलांग लगाई आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कहकहा लगाकर कहने लगे, मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक भी हैं। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहें कहें, लेकिन आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत। तकल्लुफ पहले आप है तो बेतकल्लुफी पहले हम, और जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज भर लंबी जबान। तकल्लुफ जेर लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदा बेबाक। अब अगर इस पर भी उस्ताद जोक फरमाए कि तकल्लुफ में सरासर तकलीफ है तो हम तो यही कहेंगे, साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला नहीं पड़ा। सबक बेतकल्लुफी का खुलासा। कहने को तो दिल्ली के मशहूर शायर मोहम्मद इब्राहिम जोक फरमा गए, ए जोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। एक शेर
दो मिसरों से मिलकर बनता है। और यहाँ ऐन की अलामत जो देख रहे हैं वो तब लिखी जाती है जब सिर्फ एक मिसरा नकल किया गया हो। पहले इसके सामने दूसरा शेर नकल किया जाए तो शेर कुछ इस तरह से है। ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, आराम में है वो जो तकल्लुफ़ नहीं करता। आपने ये लफ्ज़ तकल्लुफ़ बारहा सुना होगा। आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं और खाने पीने में थोड़ी शर्म झिझक महसूस करते हैं। मेज़बान उस वक्त आपसे कहता है जनाब तकल्लुफ़ ना कीजिए। तकल्लुफ़ तकलीफ़ उठाने को कहते हैं, यानी वह जो आपकी झिझक है, जो शर्म है, जो आपको खुलकर खाने नहीं दे रही है, पीने नहीं दे रही है, वही अमल तकल्लुफ़ कहलाता है। सबक के नाम बेतकल्लुफ़ी से इसी बात की तरफ इशारा है जिसमें तकल्लुफ़ ना हो। मुसन्निफ़ के नज़दीक अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ़ होती है तो बेतकल्लुफ़ी से भी कोई राहत नहीं मिलती। मुसन्निफ़ मिसाल देते हुए कहता है कि इस बात का तजुर्बा है कि वो तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज और बुलंदी पहले आप है, बेतकल्लुफ़ से बदरजहा बेहतर है। फ़र्ज कीजिए आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दारोगा आपसे कहता है तशरीफ़ ले चलिए, और आप मुस्कुरा कर निहायत लजाजत से अर्ज़ करते हैं जी पहले आप। तो ऐन मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में डलवा दे। उसके बरक्स यानी उसके उलट अगर आपकी दारोगाए जन्नत से बेतकल्लुफ़ी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बहिश्त की किसी नहर में आपको इतने घोंटे दिलवाए कि आपको छठी का दूध याद आ जाए। ये एक मुहावरा है, यानी आप बहुत तकलीफ और परेशानी में पड़ जाएं। तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हींग लगती है ना फिटकरी, और जाहिरदारी ज्यों की त्यों कायम रहती है। तकल्लुफ़ से बगैर कुछ खर्च किए जाहिरदारी निभा दी जाती है। आपके घर मेहमान आते हैं तो आप उनसे कुछ लेने की फरमाइश करते हैं। थोड़े से इनकार के बाद वो अपनी रजामंदी जाहिर कर देते हैं। बदकिस्मती से कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त आ जाए तो वो आपकी चाय के बारे में पूछने पर गाजर का हलवा, आमलेट, टोस्ट, समोसे, क्रीम रोल और केक की फरमाइश कर बैठेगा और नाश्ते की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पेश कर देगा। बेतकल्लुफ़ी में यूँ तो बहुत सी परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभी इसकी वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। फ़र्ज कीजिए आप चंद मुअज्जज अशख़ास से किसी अहम मसला पर निहायत आलिमाना बहस कर रहे हैं कि आपके बेतकल्लुफ़ दोस्त बेतहाशा दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं और साथ ही उल्टे सीधे कलिमात से भी नवाजने लगते हैं, और कमरे में दाखिल होते ही आपके दोस्तों पर एक निगाह गलत अंदाज डालकर निहायत मतानत व सादगी से माजरत करते हुए कहेंगे कि माफ़ कीजिए मेरी ज़रा इनसे बेतकल्लुफ़ी है। या कभी ऐसा होता है कि आप दो बेतकल्लुफ़ दोस्तों के बीच में फंस जाते हैं। आप वहाँ न रुक पाते हैं और ना वहाँ से निकल पाते हैं, और दोनों की गालियों की बौछार शुरू हो जाती है और आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाती है। मुसन्निफ़ के एक बेतकल्लुफ़ दोस्त जब आते थे न सिर्फ सवारी का किराया उससे दिलवाते थे, बल्कि रुखसत होते वक्त उनका एक अदद सूट भी ले जाया करते थे। एक दूसरे बेतकल्लुफ़ दोस्त सड़क पर बेतहाशा बगलगीर होकर उन्हें तमाशा बना दिया करते थे। उनकी इस हरकत को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। बेतकल्लुफ़ दोस्त
वबाल जान होते हुए भी आप उनको वबाल जान नहीं कह सकते। ये आधी रात को आपके घर आ धमके और लजीज खाने का मुतालबा करे और आपके साथ ही सोने की जिद पर अड़ जाएं। दोपहर में सोते वक्त कैंची लेकर मजाक में आपकी मूछें का सफाया कर डाले और आपको तकलीफ में पाकर आपका मुंह चिढ़ाने लगे। बेतकल्लुफ दोस्तों की बेतकल्लुफी से मुसन्निफ ने बहुत नुकसान उठाए हैं। एक बेतकल्लुफ दोस्त ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए उनका रेल का टिकट ही फाड़ दिया। एक दूसरे बेतकल्लुफ दोस्त ने उन्हें दरिया ही में धक्का दे दिया और उन्हें खूब कहा लगाकर हंसने लगे। तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहे कहें, लेकिन आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर नफासत है, पाकीज़गी है और बेतकल्लुफ़ी सरासर कसाफत, गलाजत और गंदगी है। तकल्लुफ़ पहले आप है तो बेतकल्लुफ़ी पहले हम और जहन्नम में जाएं आप। तकल्लुफ़ गज भर लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफ़ी गज भर लंबी जबान। तकल्लुफ़ जेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफ़ी खंदा बेबाक। इसके बाद मुसन्निफ कहता है कि अगर आप इस बात के हामी हैं कि ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि साहब आपका बेतकल्लुफ़ दोस्तों से पाला नहीं पड़ा। आइए अब इस सबक बेतकल्लुफ़ी के सवाल जवाब हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 है इसका, बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानी होती है? तो इसका जवाब है बेतकल्लुफ़ी से बड़ी परेशानी ये होती है कि बेतकल्लुफ़ लोग वक्त बे वक्त ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और लोग ये समझते हैं कि ये साहब भी इसी तरह बेहुदा और बदतमीज होंगे। जब ही तो ये बिला किसी झिझक ये गुफ्तगू और ये हरकतें हो रही हैं। इसका सवाल नंबर 2 है, ठीकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह किया है? जवाब, ठीकरे अपने नावल के एक किरदार के मुतालिक लिखता है कि ये साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर उधार ले लिया करते थे। सवाल नंबर 3 है इसका, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? इसका जवाब है कि इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि शर्म और झिझक की वजह से परेशानी उठानी पड़ सकती है। बेतकल्लुफ़ी एक हद तक अच्छी है, इसी तरह सरासर बेतकल्लुफ़ी भी बसा औक़ात नुकसान दह साबित होता है। तकल्लुफ़ करने में तकलीफ़ होती है, इसलिए तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए। इसके कुछ और दूसरे सवाल देखते हैं हम। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। एक मुहावरा, हींग लगे ना फिटकरी। इसका माना है कि बिना खर्च किए काम बन जाना। इसका जुमले में इस्तेमाल है कि अखबार फरोशी यानी अखबार बेचने का जो काम है ऐसा ही है जैसे हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। इसका दूसरा मुहावरा है, छठी का दूध याद आना। इसका माना है बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ना। और इसको जुमले में इस्तेमाल करके देखते हैं। जब मैंने अपना घर बनवाया तो मुझे छठी का दूध याद आ गया। इसका तीसरा मुहावरा है, दांतों में उंगलियां दबाना। और इसका माना है दंग रह जाना। इसका जुमले में इस्तेमाल इस तरह से होगा, उसके अजीब व गरीब करतब देख कर लोगों ने दांतों में उंगलियां दबा लेते हैं। एक सवाल और दिया है कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से वाहिद और जमा बनाइए। यानी वाहिद से जमा बनाना है और जमा से वाहिद अल्फाज बनाने हैं। हाथ से हाथों और निशानात की वाहिद होगा निशान। जूती, इसका जमा होगी जूतियाँ। टोपियाँ, इसका वाहिद होगा टोपी। फ़र्ज, फ़राइज़। एहसानात, एहसान। सवाल, सवालात। जंगल, इसकी जमा होगी जंगलात। और जवाबात है, ये जमा है, इसके
واحد ہوگا جواب، اور منزل ہے اس کی جمع ہوگی منازل۔ اسی کے ساتھ میں عبد القیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ہمارے چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔